Today we will discuss about इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं पता है? How this word is pronounced? Moi. Moi. This is called moi. French है. Moi devices. Second we discuss about ECC. Now, we will also try to develop a computational program in MATLAB to find the potential of a Moiré device or a Moiré pattern. दोनों के केस में हम लोग यूज करेंगे computational methods. So, for that, let us start for the basic understanding what are these Moiré devices. ये वाला let us first start with this, just give an introduction और फिर सेकेंड हाफ में पूरा बहुत सारा टाइम है सेकेंड हाफ में तो वहाँ पर वो डेली डिस्कस करेंगे। ये मोर डिवाइसेस बेसिकली होता है कि इफ यू टेक टॉक अबाउट दिस इफ यू टेक टू atomistically flat crystals atomistically flat crystals over low and like this is one crystal and they overlap, make them overlap. तो atomistically flat crystals से मतलब है taking basically 2D material. टू डायमेंशनल मटेरियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टू डायमेंशनल मटेरियल में बहुत सारे मेटल्स आते हैं। इट कैन बी फर्स्ट दैट कम्स टू अवर माइंड इज ग्राफीन। ये प्रीवियस क्लास में सब्जेक्ट में हुआ था ब्लू फॉर स्क्रीन, और TMT TMT से मतलब है ट्रांजिशन मेटल chalcogenides. TM stands for transition metal and T stands for So you know what is a chalcogenide? Chalcogenide किसको बोलते हैं? Basically group 16 के जो elements हैं हम उसको बोलते हैं chalcogenides. Group 16 without oxygen. If we leave the oxygen, we have sulfur, Se. Basically, ये तीन. What these chalcogenides mean? They इसका मतलब है ore forming. Ore forming. And transition to में होगा molybdenum and tungsten. So it is in the form of Mx2 that too it can be
S2, different combination. So this is what is a TMD, transition middle dichalcogenides. So ये जितने सारे materials हैं, all of them are two-dimensional material. So we take any two-dimensional materials which are atomistically flat and उसको हम लोग जो overlap करते हैं, एकदम overlap like this. ये एक हो गया, मान लो ये overlap. तो इससे क्या होता है? It leads to formation of something called an overlapped superlattice. Artificially engineered lattice. Superlattice. Right. So how the superlattice works? The superlattice is a form of periodic stripes. Okay. Stripes. Let me draw it in a straight form. Stripes. It's a combination of dark and white stripes. So इसका मतलब क्या है? Dark and white का यहाँ पर different meaning. तो इसको what actually this means? इसके लिए let us first know where are these used. तो each one a device का है. Basically you can make memory and logic devices together. A two-in-one device consisting of a memory device non-volatile memory device and logic device. Switches, by logic device I mean switches. And non-volatile logic device, and also some other device. Therefore, we first start with NVM and logic. NVM का मतलब है if you are not giving the power supply, it is maintaining the memory. So these sort of devices can be formed. Now the phenomena that occurs in these MOA patterns, first of all, इसकी जो periodicity है, अच्छा ये एक superlattice है, मतलब this is you can consider this, it is the difference between, it is the periodicity, the lattice constant जो हम लोग पहले use कर रहे थे, उसकी जगह पे we will take now this distance. So new crystal formation takes place. This is the overlap of these two crystals. इन्हें crystal बनता है. दोनों atomistically flat है. This is an atomistically flat crystal. ये वाला second one. पहला वाला में एक atomistically flat crystal है. इसको जो हम लोगों ने ओवरलैप किया, तो ओवरलैप किया after, so there can be a lattice mismatch due to the overlap.
दो चीज़ हो सकती है, लाइक लैटिस मिसमैच हो सकता है. सेकेंडली, we can give it a twist. Twist मतलब it is not exactly एक के ऊपर एक को तो हम लोगों ने थोड़ा सा घुमा के रखी है. जस्ट दिस एंगल, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज ये वाला जो एंगल, दिस एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा. दिस इज अ ट्विस्ट. तो इन दोनों के कारण से वी आर गेटिंग दिस न्यू सॉर्ट ऑफ क्रिस्टल, ओवरलैप क्रिस्टल. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्रिस्टल एंड द प्रीवियस क्रिस्टल? इसका जो पीरियोडिसिटी है, दैट इज न्यू. Periodicity is मान लो Lm, m is oil. This is much greater than the lattice constant previously. The lattice constant था उससे, ठीक है. Much greater than बोलना गलत होगा. It is greater than, but it is different than this A. It is actually equal to Lm is equal to A by 2 sine Lm is equal to A by 2 sine This is the new periodicity, नया वाला. और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज अराउंड 50 200 150 nanometers, which is quite large. Now, if you look into the potential, हम लोग जानते हैं कि whenever we are looking into a material, उसका जो potential depend करता है how electron wave function behaves inside the machine. इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड, इलेक्ट्रॉनिक जो वेव फंक्शन है, how it behaves. You have heard about this block waves. Periodic potential अगर है on metal के केस में, in that case you are having psi r is equal to u kr power I kr. I think I have discussed this one. You have previous class discuss किया था. This is the block function showing its periodicity. ब्लॉक फंक्शन का मतलब है u k r plus a is equal to u k r. मतलब if you repeat after a certain interval, जो ये lattice constant के बाद it is repeating itself. The potential is getting repeated like this. ये इसका potential. Now in the case of void crystals भी similar formation होता है. But the only thing is that the gap or the band gap or the energy gap W ये बहुत कम हो जाता है compared to the original crystal, because it is equal to H cross square divided by ME LM.
LM square. LM square. LM square. This is the energy gap between the potential. Now, since LM is an enhanced value, so an increase in LM will lead to a decrease in the energy gap. ठीक है. So due to this increase in energy gap, कुछ नए फिनोमेना अराइज होते हैं, इसको बोलते हैं BZ shrink, band folding, flat band, mini band, and localized electron entrapment. ये सारे फिनोमेना यहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो क्या क्या है? एक है श्रिंकिंग. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीजे? विलोमा जोन का श्रिंक होना, बैंड फोल्ड होना, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट बैंड होना, फॉर्मेशन ऑफ मिनी बैंड होना, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एनट्रैपमेंट. हम देखेंगे ये सब एक हम जो बोल रहे हैं, इट्स बेसिकली द सेम फिनोमेना, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ मूविंग पैटर्न. अच्छा, इसके अलावा और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन पॉइंट ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिवाइस फैब्रिकेशन, कि इसका जो फेरो इलेक्ट्रिक और जो पोलराइजेशन नेचर है, polarization, it becomes periodic. Okay, the periodic polarization. और periodic polarization होने से जो advantage that we get is by the application of an electric field which is vertical, we can flip the polarization. Okay. So we can actually flip the polarization. So this is the this is the basis of formation of a logic and memory device. धीरे धीरे हम लोग एक एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. Go to the next. So इसका let us take a very simple example. मतलब बेसिकली क्या करेंगे, दो 2D मटेरियल को हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं. This is what we are doing, right? पहला जो हम लोग सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं ग्राफीन. ग्राफीन एक 2D मटेरियल है. ठीक है ना. ग्राफीन का एक विलोमा जोन है. एक सिंगल ग्राफीन का एक विलोमा जोन है. what is the meaning of विलोमा जोन? It is basically हम लोगों को जानना है. व्हाट इज द विलोमा जोन? मतलब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल केस में एक्साइटेड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग डिफ्रैक्टेड, ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाइड होता है ना. इलेक्ट्रॉन वेव्स भी इट फॉलोज ब्रैग्स लॉ.
forms standing waves. Just say, if you go to the reciprocal lattice, K space, जो हमको TM-ACD पैटर्न में मिलता है, you know what the K space is? That we get from real space, we get a K space, momentum space by means of Fourier transform. इसको अभी फिलहाल इसको ऐसे देख लो कि we have crystal planes, है ना, इसे crystal field में हर एक crystal planes, we have crystal planes in different directions. This is one direction, this is another direction, this is another direction. So हर एक crystal planes, how do we define the plane? We can define the plane by a normal possible fluid. So हर एक crystal plane से अगर हम एक normal ले लें और उसको एक फ्लैट स्क्रीन में प्रोजेक्ट करें, all the normals, so one point will denote one plane, so this becomes a K space or a reciprocal lattice space. अच्छा, अभी भी मान लो तुम्हारे जो डॉट्स हैं वो इस तरह से बनेंगे, ऐसे ऐसे। तो इस के स्पेस का भी एक यूनिट सेल होगा, जैसे कि रियल स्पेस पे जिसका एक यूनिट सेल होता है, उसी तरह से द के स्पेस विल आल्सो हैव इट्स यूनिट सेल. So how to find out that unit cell or primitive cell? We will take the perpendicular bisectors. We will take select a certain point and we will take perpendicular bisectors. So ये वाला लो में as a central, choose this one to be the central one. So इसके साथ we will connect the nearest atoms. ये चार इसके nearest atoms हैं, connect हो गया. Then we will bisect them. So this region is called the first billowing zone. First billowing zone. और इसका जो बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री यहाँ पे हो गया, मतलब ये दिस ई के बाउंड्री हो गया -π/a यहाँ पे ये वाला हो गया, ये हो गया π/a. K दिस बेसिकली ये जो इसका जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में k है, ये kx है, ky है, so kx and ky, so let us take kx only. So kx is in between -π/a to +π/a. So I can say that kx is equal to plus minus y/a, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि the electron, if we allow an instant electron to fall onto this system, it is getting deflected from the two walls. Standing waves है, standing wave होता है ना? There is standing wave formation between the two walls. Electron deflect होता है, इसलिए तो हम लोग पॉइंट होते हैं. So these are the standing waves. They represent the standing
In the case of Moire pattern, Moire pattern, the first condition is that this Brillouin zone, ये क्या होता है? ये it shrinks. From this equation also तुम बोल सकते हो why it is shrink, because इसका L value is much larger compared to the A value. L value is much higher. So reciprocal lattice basically हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? We call it as reciprocal lattice. Constant. If A is my real lattice constant, I take the reciprocal lattice constant as 2 pi by A. Is the reciprocal lattice constant. उसी तरह से in the case of Brillouin zone, my reciprocal lattice constant Gn will be 2 pi by n. This is my reciprocal lattice constant. अच्छा, इसका मैं अगर E के डायग्राम ड्रॉ करूँ, एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल डायग्राम, यहाँ पे तो सिर्फ डायमेंशन है, मैं टेक एनर्जी आउट। इस केस में मोरे पार्टिकल नॉर्मल क्रिस्टल के केस में, so it looks something like this. So you know that we have got two boundaries here. We have minus pi by A और एक है प्लस pi by A. ठीक है, this represents what? This represents the first electron diffract role, दोनों sides. अच्छा, what is my next Brillouin zone? Next Brillouin zone, if I go a step further, मैं अगर दूसरे perpendicular ट्रांसेक्टर्स को ऐड करूँ, so इससे नियरेस्ट ये चार हो गए, उससे जो दूर है, उससे दूर कौन कौन से होंगे? ये वाले, this one and this one. उसका मैं अगर पर्टिकुलर ट्रांसेक्टर ड्रॉ करूँ तो विल बी ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये जो ब्लूइश रीजन है, ये क्या हो गया? इसका दिस विल बी माइनस 2 पाई बाई ए टू 2 पाई बाई ए, है ना? दिस इज द सेकेंड Brillouin zone. And in the EK diagram, this will be represented by this as it. मतलब एक sort of a broken parabola. So this is basically, it is a parabola. ये जो है, if you take dotted lines is equivalent to represent this one. This is a parabola. Diagram takes a little time. Why it is a parabola? Because E is equal to E square by 2n, that is H cross square A square by 2n. So this is a diagram, this is a parabola. Lekin in this diagram there are certain states which are allowed states and there are certain states which are not allowed states. तो पहला allowed state कौन सा है? This is the first Brillouin zone. This is this one. E minus pi by 2 first pi by. Second allowed state कौन सा है?
the second predominant. ये और ठीक है. So this again is minus 2 pi by a and 2 pi. इन दोनों के बीच ये जो छोटा सा गैप है, दिस इज द फॉर्बिडन रीजन. ये वाला ये रीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर. दिस इज द फॉर्बिडन रीजन. और द बैंड गैप W, which we have previously discussed, ये. So this forbidden region is getting minimized. ये कम हो गया in the case of a Moeller pattern. Now two-dimensional materials के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. Basically we are talking about 2D materials. 2D materials का जो E का डायग्राम होता है पैराबोलिक नहीं होता. It's more of a straight इस तरीके का होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राफीन, मेरे को याद होगा प्रीवियस क्लास में हुआ था. ग्राफीन का E के डायग्राम ग्राफीन वो this is a zero band gap semiconductor. This is the conduction band. Remember, this is the conduction band and this is the valence band. So graphene is a zero band gap circuit. Although there is no band gap, also since it is zero band gap, so it is also semi-little bit. ठीक है. Now the question is in the case of Moeller pattern हम लोग और एक ग्राफीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, उसके साथ भी हम लोग की और एक ग्राफीन को ऐड करें प्लस 1 करें ओवरलैप. ओवरलैप करने से क्या होगा कि और एक आ जाएगा इसके पास. ओवरलैप है ना. ओवरलैप में ये वाला रीजन को थोड़ा सा नोटिस करो. ये जो रीजन है यहाँ पर एक गैप एग्जिस्ट करता है. मतलब इनिशियली जो गैप था, नाउ द गैप हैज रिड्यूस्ड. दिस इज कॉल्ड द हॉपिंग पॉइंट. मतलब इसका मतलब यह है कि there is a possibility of tunneling between the two graphene layers. तो इसको ये पोजीशन प्राप्त करता है. और there is a degeneracy that means you are having same energy and momentum at the intersection
जब इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यू गेट द सेम इनर्जी मोमेंटम. इसको हम डीजेनरेसी बोलते हैं. मतलब व्हाट इज द डीजेनरेसी? हैविंग मोर देन वन स्टेट पर एनर्जी. तो ग्राफिन नहीं चाहता कि डीजेनरेसी एग्जिस्ट हो. इट ट्राइज टू अवॉइड द डीजेनरेसी. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें. मतलब ग्राफिन degeneration is not acceptable, so it tries to avoid the degeneracy. So how will it avoid the degeneracy? It avoid degeneracy by making local electron entrapped states. Local electron entrapped states. तो दिस लोकल इलेक्ट्रॉन entrapped states जो हम बोल रहे हैं, दिस इज द रीजन वाई वी आर गेटिंग दिस स्ट्राइप्ड. सो बेसिकली डार्क एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होता है. तो जहाँ पे डार्क है तो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एक कपलिंग बोल सकते हो. देयर इज अ कपलिंग बिटवीन द टॉप लेयर एंड द सेकेंड टॉप लेयर और जो नीचे वाला लेयर, इसमें कपलिंग हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग जहाँ पे ज़्यादा है, दिस विल गिव राइज टू अ डार्कर, विजुअली इट विल लुक डार्कर. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कपलिंग कम हुआ है वहाँ पे इट विल लुक ब्राइट. सो नाउ दिस डार्कर रीजन, जैसे मैंने कहा था कि पोलराइजेशन भी इफेक्टेड होता है इसके साथ. So darker region corresponds to polarization in the positive polar, मतलब it gets polarized. P, the darker one. वहाँ पे यहाँ पे there is coupling is strong. Coupling is strong. जहाँ पे light है, in that case the coupling, the brighter region, यहाँ पे coupling is weak. Now, and so if you can apply an electric field, also you can flip the coupling. जो पहले जो प्लस था उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव था उसको प्लस. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक एंड गेट फॉर्मेशन कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गेट जीरो एंड लॉजिक गेट एंड पता है. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर टेकिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, polarization is existing, so that means it a non-volatile memory. एक memory, electronic memory and a logic system together you are getting. ठीक है. अच्छा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे in the second half in more details and with a simulation how to find out the how to actually plot the Moire potential. हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पर थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ. तो इसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है. आई थिंक द बेसिक मेटलर्जी पार्ट जो है, एज, यू नो व्हाट इज एन एज एंड स्क्रू, है ना. तो आवर मेन रोल इज टू एल्गोरिथम लिखना, बेसिकली प्रोग्राम लिखना इन मैटलैब, क्योंकि सबसे आसान है, और विजुअलाइज द स्क्रू ऑन एज. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एज से. तो बीसीसी में एज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम लोग देखेंगे इन सॉर्ट ऑफ एक एटमिस्टिक मॉडल मैटलैब. तो तुम लोग जानते हो कि बीसीसी बर्जर सेक्टर क्या होता है. बीसीसी बर्जर सेक्टर होता है एच ए बाई 2 1 1 1
3 इसके डिफरेंट प्लेन्स होते हैं. तो फिर जो 110 इज द मोस्ट एक्टिव प्लेन, एज क्रिटिकल. ठीक है, दोनों के डिफरेंट. दिस इज द एज. तो इसको अगर हमको देखना है इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक मॉडल, एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, वहाँ हम लोग देख रहे हैं. 17 पॉइंट्स हैं उस प्रोग्राम में. 1 2 3 4 5 6 7 पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एसएमएस. सिक्सटीन 17 उतने इम्पोर्टेंट नहीं है. 16 17 6 में जैसे एक्सिस ऑन है, सॉरी ग्रिड ऑन है. एक्सिस एंड एक्सिस ऑन एंड ग्रिड है ना. एक्सिस इक्वल, सॉरी एक्सिस इक्वल ग्रिड ऑन. तो इसका मतलब है देयर इज नो डिस्टॉर्शन. वी आर नॉट पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन. इसका मतलब है जो ग्रिड लाइन्स 3D grid lines, we are introducing that 3D grid lines. So this is what it means. ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. लेकिन इनिशियली ये जो 15 स्टेप दे आर वेरी इम्पोर्टेंट. पहले वाला स्टेप है कि वी नीड टू डिफाइन द लैटिस कांस्टेंट. अच्छा, मैटलैब में जो बेसिक जो रूल है कि इट्स लाइक वेरी सिंपल. जब हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में जैसे इक्वेशन लिखते हैं उसी तरह से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू रूल्स. जैसे तुम लोग मैं करूँगा तो then you will understand. जैसे फर्स्ट विल राइट a इज इक्वल टू 1. ओके, तो इसका मतलब हम लोग जो ये जो लैटिस कांस्टेंट है इसको हम लोग टेकिंग दैट इक्वल टू 1 फॉर मेकिंग इट सिंपल. ठीक है. अच्छा, हर एक कोड के बाद देखोगे दिस इज सेमीकंडक्टर. That means the system has taken the value. उसके बाद the next step is okay, I'm writing R1, R2, R3, ND grid, -3 is to 3. So the next rule is in MATLAB, if you write 1 colon 10, you write a is equal to 1, a means let us say 1 colon 10. So it means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you write 1 colon 2 into 10, so it defines the interval. So it will be 1, 3. इससे क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9. ये जो एक्सट्रीम इंटरवल्स हैं और इनके बाद अगर कुछ नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली टेक्स इंटरवल का 1. तो यहाँ पे और इंटीग्रेट मतलब I am creating a 3-dimensional lattice. एक ग्रिड सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ 3D लैटिस, जहाँ पे और ये x, y and z है. बेसिकली R1, R2 and R3 मतलब x, y and z. सो x को मैं ले रहा हूँ -3 से +3. इसी तरह से y को ले रहा हूँ -3 से +3 और z को भी ले रहा हूँ -3. ओके, मेरा लैटिस स्पेस बन गया. नाउ आई विल असाइन एटम्स टू द लैटिस पॉइंट्स. पीसीसी में
बर्जेस वेक्टर इक्वल टू 3/2 a, ठीक है। और जो कॉर्नर एटम्स हैं मान लो यहाँ पे लिखे हैं, ये जो कॉर्नर एटम्स है मैं इसको ले रहा हूँ A, so I am writing A is equal to A star R1 R2 R3, ये पॉइंट नेक्स्ट स्टेप है ना। इस सिंबल का मतलब है बेसिकली कलम वेक्टर, कलम वेक्टर, कलम, हाँ मतलब x, y and z। इसमें कितने कितने लैटिस पॉइंट्स हुए हैं जो हमारा ग्रिड सिस्टम बना है? हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स डू यू थिंक आर देयर? जो यहाँ पे 7 है, 7 है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 7। So it is basically 7 cross 7 cross 7, मतलब 343 होता है इसका। तो देयर आर 343 लैटिस पॉइंट्स। अभी किसी का क्लास है? किसका क्लास है? नजर बाहर आया नहीं? ओके, 343 लैटिस पॉइंट्स। और ये जो सेकेंड पॉइंट है इसमें क्या कर रहा हूँ, हर एक लैटिस पॉइंट में आई एम असाइनिंग माय लैटिस कांस्टेंट और आई एम असाइनिंग द x, y and z वैल्यू टू ईच लैटिस पॉइंट। मतलब बेसिकली हर एक लैटिस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब ईच लैटिस पॉइंट विल नाउ हैव a coordinate in terms of x, y and z. This is what I am doing. ठीक है? अच्छा, ये अगर A है, there is a central atom at the center. If I take this one as B, इनमें डिफरेंस हो जाता है। B is basically A plus A by 2, है ना? It is half the distance। हाफ डिस्टेंस है ना। ये मेरा अगर ए है, ये है, तो जो सेंट्रल एटम है दैट इज एट हाफ द डिस्टेंस हर एक एटम के केस में। सो बी ए प्लस ए बाय 2। ओके, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक इट्स क्लियर। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज इट विल लुक क्लमजी। अब सिस्टम ने दे दिया, नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फिगर। हम लोग अभी आते हैं फिगर। पांचवा पॉइंट फिगर। अब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द कमांड इज स्कैटर 3 A 1 A
2 A 3 यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे हाउ माई, तो आई एम पुटिंग इट, इसके बाद हम लोग आई थिंक 40 या 60 जो भी है, 40 कॉमा नन, दिस इज व्हाट इज नन है ना, एक कुछ और कितना ओ फील्ड सॉरी फील्ड 40 कॉमा ब्रैकेट में फील्ड। इसका मतलब अगर आई थिंक अंडरस्टैंड, मतलब इट इज असाइनिंग spheres which are filled at the corner points, ठीक है। मतलब हर एक कॉर्नर पॉइंट्स में एक करके स्फीयर्स दे रहे, मतलब ए, टॉकिंग अबाउट ए रिप्रेजेंट हो गया। देन होल्ड ऑन, आई थिंक होल्ड ऑन इज देयर। होल्ड ऑन का मतलब है, होल्ड ऑन का मतलब समझने की जरूरत नहीं, एक फिगर बन रहा है, उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं लोग, उसका और दैट कि अगर होल्ड ऑन नहीं देते ना तो इट विल रिमूव दैट फिगर, फिर से बी आ जाए। सेम थिंग विल राइट फॉर द बी, स्कैटर 3 से बी कॉमा 1 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे इसका शेप तुम चेंज कर सकते हो, इसको 160 ले लो, कलर इसके कलर नहीं दिया है, 60 फीट राइट। हाँ 40 वो मार्जिन नहीं करता कुछ भी, मतलब जस्ट टू हैव अ डिफरेंट साइज। सो अभी क्या हो गया, नाउ आई हैव माई ए हेयर, मैंने सारे कॉर्नर पॉइंट्स में मैंने ए डाल दिए हैं और सारे एक सेंट्रल पॉइंट पर भी मेरा बी आ गया। सो माई बीसीसी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अभी मुझको स्क्रू एज डिसलोकेशन इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि आई विल इंट्रोड्यूस अ प्लेन, ठीक है, और प्लेन में मतलब एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो जानते हैं कि ऐसा ना, इसका मतलब क्या है कि इज हाफ प्लेन ऑफ एटम्स ऐसा करके, और इसके साइड में ऐसे ऐसे हाफ प्लेन्स ऑफ एटम्स हैं। यूजुअली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन। तो इसको अगर हमको प्लेन रिप्रेजेंट करना है तो विल इंट्रोड्यूस अ प्लेन, और उसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ब्रेक द प्लेन, ब्रेक the plane in the midway, then we will elevate the एक प्लेन रहेगा, मिडवे से उसको ब्रेक कर देंगे, फिर उसको हम लोग एलिवेट करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग को एक एक्स वाई सरफेस इंट्रोड्यूस करना है। सो दिस इज इक्वल टू मेश ग्रिड minus 4:4 comma minus 4. I mean you can understand what it is a mesh. Now we are introducing a plane, उसके लिए x and y values जो different values हैं वो मैं एक x and y मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करूँ। -4 to 4 इसका वैल्यू -4, राइट। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ प्लेन। इंट्रोड्यूसिंग अ प्लेन मतलब मुझे कौन सा प्लेन इंट्रोड्यूस करना है, 1 1 1।
basically 1 1 1, right? So this corresponds to x plus y plus z is equal to 0. क्योंकि सारे इसके कोफिशिएंट्स 1 है, तो इसको ऐसे नहीं लिख के मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई. ओके, minus x minus y. Then I'm reducing a surface SURF comma x comma y comma z. ये जो वैल्यू है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज फेस अल्फा फेस अल्फा कॉमा 0.2. फेस अल्फा कॉमा 0.2 का मतलब है a plane which is 20% opaque. 0.2 मतलब 20%. So we are introducing a plane which is 20% opaque. है ना? और इसका एज कलर होगा नल. Not giving it any edge color. Edge color is not. Okay. Now एक distortion हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे. Now introducing a distortion. Distortion इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग ऐसे IDX बोल के. And IDX will be equal to A. ये वाला सेम रहेगा. A plus A2, this is greater than 0, and absolute A 3 is less than 0.5. मतलब x, इसका मतलब है x plus y is greater than 0, but z is less than 1. तो ये जो प्लेन था इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया दो भाग. पहले वाला है x plus y is greater than 0 and second वाला है z is less than 0. Okay. अभी तो next step is we will now raise the z value to 0.3. इसलिए plus 0.3 वैल्यू देखो तो next step में दिया गया है. Now we will again scatter the same thing जो कि हम लोगों ने इस केस में किया था. स्कैटर करेंगे. ए के केस में हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज डॉट डॉट, इस डॉट डॉट की जगह पे हम लोग लिखेंगे IDX कॉमा 1, फिर लिखेंगे A IDX कॉमा 2 और फिर लिखेंगे जो A IDX कॉमा 3 प्लस 0.3 और इसका एक डायमेंशन लिखेंगे जो भी है. मतलब सब समझ रहे हो क्या हुआ? एक ऐसे बहुत ज़्यादा वो हो गया. लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई इट. x plus y plus z is equal to 0. This is the plane which will hold the edge dislocation. हम लोग बोलते हैं ना, it is half plane of atoms.
This is what we call half plane of atoms. Half plane of atoms मतलब if it was not a half plane of atom, it was the full plane मतलब ये बोलते हैं इसको, this is the half plane. So by half plane we basically mean this one, इसको बोलते हैं. तो अगर हाफ प्लेन नहीं होगी, ये फुल प्लेन होता है इसके जगह पे, सो दैट प्लेन वुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन. अभी व्हाट इज आवर रोल इज टू ब्रेक इट एंड मेक इट इनटू टू हाफ्स. इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम लोग इसको लिख रहे हैं कि इज टेक x प्लस y ग्रेटर देन 0 एंड z ब्रेक करें. अभी ब्रोकन इट ब्रेक करने के बाद ये जो z वाला पोर्शन है जो ब्रेक हो गया है उसको हम लोग उठा दे रहे हैं प्लस 0.3. ठीक है. तो यही नेक्स्ट स्टेप होगा जो स्कैटर करके जो लिखा गया है स्कैटर 3 स्कैटर मतलब नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट बॉन्ड्स. स्कैटर करके लिखा गया है ए इनिशियली आई टी एक्स जो भी लास्ट में जाके लिखोगे जो थर्ड वाला है दैट इज आई टी एक्स ओवर 3 इसके साथ एक 0.3 ऐड किया है. You have that codes with you. Okay. और एक the next step is you have Burgess metric को define कर रहे हो b by 2 1 1 1 not स्टार ए. और ये जो एक लास्ट जो एक कमांड है क्वीवर Quiver 3 0 0 0 B1 B2 and B3. इसका मतलब है यू आर ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस. अच्छा जो डायमेंशन वगैरह है ना हर एक कमांड के बाद देखोगे दे आर मेंशनिंग द डायमेंशन हाउ डू आई वांट माय पॉइंट टू लुक लाइक. तो फील्ड अगर है इट मीन्स इट इज फील्ड. फिर उसका जो कितना साइज है डायमेंशंस है दैट इज डिफरेंट. लेकिन जो बेसिक थिंग इज दिस वन. सो फिगर मतलब आई एम फ्रॉम द ओरिजिन दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन आई एम ड्रॉइंग अ लाइन along the b vector that is the Burgess vector. इसका मतलब ठीक है. तो द सेम वे वी कैन ऑल्सो डू इट फॉर द स्क्रू. स्क्रू में क्या करते हैं हम लोग, स्क्रू में हम लोग को इंट्रोड्यूस करेंगे. स्क्रू में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक डिस्लोकेशन एक जेड एक्सिस. एक जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोग एक हेलिकल पाथ असाइन करते हैं टू द एटम्स. तो उसका बेसिकली यूज इट इज इक्वल टू d by 2 pi theta. This is the है ना. हेलिकल पाथ असाइन किया जाता है r cos t r sin t. तो दैट इज इसके सामने ऐसे एटम्स रहते हैं एंड देन इट एक्चुअली फॉलोज अ पाथ. ऐसे घूम के आता है, ट्विस्ट हो जाता है. ट्विस्ट होने के बाद इन दोनों में यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, अगर किसी के पास डायग्राम है तो देखोगे एक एटॉमिक स्टेप का एक फर्क हो जाता है. दे आर नॉट एट द सेम लेवल. मतलब घुमा के हम लोगों ने इसको ऊपर कर दिया. तो मैंने जो फिगर्स तुम लोगों के साथ शेयर किए हैं वो स्टेप बाय स्टेप. सेकंड वाला देखो जो स्क्रू वाला है
इनिशियली देयर इज फॉर्मेशन, जो ब्लू जो डॉट्स हैं दे आर द कॉर्नर ए, है ना, जो लास्ट में शो किया है। है ना, पहले केस में क्या हो रहा है, मैंने एक एक्सिस को लेके किया, मैंने तीनों एक्सिस को नहीं किया था, तो मैंने इनिशियली द ब्लू एटम्स आर द कॉर्नर एटम्स, राइट, देन दे आर फिल्ड। उसके बाद क्या हुआ है, द रेड अनफिल्ड एटम्स आर द वंस विच आर एट द सेंटर। हो गया? उसके बाद मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऐसे क्रिएट किया, दिस लाइन, जिसके आसपास उसको स्क्रू या फिर ट्विस्टिंग करना है। देन आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द ट्विस्ट, so initially it was a blue line, the corner atoms, these are the corner atoms, ये वाले corner atoms जो थे तो होते हैं। उसके बाद जो बीच में जो था वो था रेड, ऐसा था इनिशियली। एक इंट्रोड्यूस किया गया एक जेड एक्सिस, और उसके चारों तरफ हम लोगों ने इस ए एटम को घुमाया, जो कि आगे एक ब्लैक तो यहाँ पे आएगा नहीं, लेट्स कॉल दिस वन, घुमा के मतलब ये वाला एटम घूम के आके यहाँ पे आ गया। सो एक दिस इज द वर्चस, तो एक लेवल ऊपर उठ गया, ठीक है। तो इसका भी प्रोग्राम हम लिखेंगे। तो इनिशियल फॉर्मिंग द लैटिस विल बी द सेम, ओनली थिंग जहाँ पे हम लोग मैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जगह पे हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस इंट्रोड्यूस करेंगे और एक हेलिकल पाथ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, पूरा लैब है। मैं थोड़ा इनिशियली थ्योरी तुम लोगों से ले लूँगा, पढ़ा के फिर फोकस हो जाएगा। पीसी तुम लोग है ना, पीसी लेके आना, यही पे हम लोग मीट करेंगे, मीट हियर जाएंगे।